Hello students. So the next topic of the unit third is TTL NAND gate circuitry. So अभी तक we studied about the characteristics and the digital ICs. Okay. Now अब हमारे पास जो main we will be starting with the कि हम कैसे we are making the circuits. Okay. मतलब like NAND gate, AND gate. अभी तक we had studied all the gates है ना in previous units. We studied about all the gates and or different circuits. Now we will know कि basically इनका जो operation है ना how NAND gate or any of the gate like particularly but here we are talking about NAND gate only, how NAND gate is basically formed with the help of transistors. Like I told you कि these circuits like this NAND gate का जो composition है, these can be made of various other elements like transistors, resistors, capacitors, diode, बहुत सारी चीजें मिलके they form a gate. जो हम gate बोल रहे हैं ना, basically it is composition of various elements. So how the NAND gate circuitry is actually made, that is what we are going to talk here. So we are going to make the NAND gate using TTL. Now what is this TTL is? Transistor logic. That means हम transistor का use करके the main component of our TTL will be the transistors. Okay, इसमें हम transistor use करेंगे mainly. So that is what TTL stands for. Now as we know that the same area here written is the digital logic gate. It is actually the basic building block from which all digital electronic circuit are constructed from, obviously. Now these logic gates can perform various operations like AND or NOT. The main thing which we are gonna use here is जो हमारे पास यहाँ पे दो लॉजिक होंगे, लॉजिक 1 लॉजिक 0 हमेशा होते हैं, that we call as either इसका लॉजिक वैल्यू में बुलियन लॉजिक वैल्यू में either we represent लॉजिक 1 as true, लॉजिक 0 as false, and in voltage state ये मैंने I have told you this in class earlier too कि इस लॉजिक 1 और लॉजिक 1 के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. लॉजिक वैल्यू में मतलब जब हम बुलियन लॉजिक पढ़े थे उस समय हम लॉजिक 1 को क्या लेते थे, दैट मींस देयर दिस कंडीशन इज ट्रू, लॉजिक 0 वाज फॉल्स. नाउ अगर हम वोल्टेज स्टेट को कंसीडर करें तो इट इज कंसीडर्ड एज हाई, लॉजिक 1 इज कंसीडर्ड एज हाई एंड लॉजिक 0 इज कंसीडर्ड एज लो. वोल्टेज स्टेट अब हाई लो मतलब अगर मैं इसको एग्जैक्टली वोल्टेज के टर्म्स में वैल्यूज देके स्पेसिफाई करूं तो इट विल बी लॉजिक 1 विल बी माय 5 वोल्ट और यू कैन टेल बेसिकली हम 0 से 5 वोल्टेज तक की वैल्यू यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट इन व्हाइल यूजिंग दिस बाइनरी नंबर्स. वोल्टेज वैल्यू में वी यूज 0 to 5 वोल्ट. So that 5 volt is represented as logic 1 and 0 volt is represented as logic 0. Now ये भी बोल सकते हैं कि 0 to 5 volt में exactly 0 और 5 बीच की values क्या होंगे. So we divide it like you can say that the range 0 to 2.5 can be called as logic 0 and then 2.5 to 5 volt is considered as logic 1. That completely depends upon the user या फिर the programmer कि how we have set the value for the logic 1 and logic 0. Okay, जैसे ही वैल्यू को आप सेट करोगे दैट विल बी द लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0. नाउ वैसे सर्किट की एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो उसमें हम जो प्लस VCC वैल्यू होती है ना, मतलब जो भी हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे होते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज लॉजिक 1, उसको हम लॉजिक 1 मिलते हैं. और जो ग्राउंड होता है बेसिकली ग्राउंड, अगर ग्राउंड से कोई कनेक्शन है तो उसको हम लॉजिक 0 कंसीडर करते हैं. ओके, सो दैट वाज अबाउट द वैल्यू. नाउ दिस इज द TTL's लॉजिक वैल्यू जस्ट. Now yes, this is what you must know is like ideal TTL का जो digital logic gate voltage level होता है, देखो ये मैंने बताया +5 voltage है यानी this is logic 1, 0 voltage है मतलब logic 0. और you can also say कि जब logic 1 है that means एक तो +5 volt this is connected है ना. Now अगर switch जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर output दे, let's say that I am taking the output here, this is my output. Now देखो यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन है दिस इज कनेक्टेड टू थ्रू रेजिस्टर टू प्लस VCC. दिस प्लस VCC है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, +5 वोल्टेज वी आर प्रोवाइडिंग है. प्लस VCC इज एक्चुअली द वोल्टेज वी आर प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम. तो यहाँ पे +5 वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है. और देखो इसी लाइन में नीचे देयर इज अ स्विच ओपन, दिस इज एन ओपन स्विच. इस ओपन स्विच को वी कैन गिव द नेम एज ओपन सर्किट और ओपन स्विच कैन से.
नाउ देखो ओपन स्विच है अगर, तो मतलब नीचे से हमारा कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, सिवियर हो चुका है ना, दिस कंडीशन इज ब्रोकन। तो ये किससे कनेक्टेड है? ऊपर से कनेक्टेड डायरेक्टली। अब जब नीचे से कनेक्शन ही नहीं है तो ऊपर से लाइन किधर को जा रही है? 5 वोल्टेज को, और 5 वोल्टेज को हमने क्या माना है? लॉजिक 1। दैट मींस मुझे आउटपुट की क्या मिलेगा? 1। बाइनरी टर्म्स में है ना, क्योंकि हम बाइनरी वाले आउटपुट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ये, पर देखो अगर ये जो स्विच है, ये जो पाथ है, दिस पाथ इट इज क्लोज्ड, दिस स्विच इज क्लोज्ड, तो देखो ये क्या होगा, ये रास्ता ग्राउंड को जाएगा ना ज्यादा इजीली। अभी तक ये तो पता है हम लोग को, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मस्ट हैव स्टडीड कि व्हेनेवर देयर इज अ पाथ स्ट्रेट लीडिंग टू द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड ये जीरो वैल्यू तक जाते हैं, तो वी ऑलवेज, मतलब करंट ऑलवेज प्रेफर दैट पाथ ओनली। वो रेजिस्टेंस वाले पाथ को तब फॉलो करती है व्हेन देयर इज नो स्ट्रेट पाथ लीडिंग टू ग्राउंड। यहाँ पे बट यहाँ पे स्ट्रेट पाथ इस बार जा रही है, हमने जैसे स्विच क्लोज कर दिया है तो करंट को एक रास्ता मिल गया है डायरेक्टली ग्राउंड तक जाने का इजीली, बिकॉज करंट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो टुवर्ड्स ग्राउंड। तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली जो करंट का फ्लो डायरेक्टली ग्राउंड तक जा रहा है, तो दैट मींस ये जो वैल्यू यहाँ मुझे आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा? ग्राउंड की वैल्यू को क्या कंसीडर करा है हमने? लॉजिक 0, हेंस दिस इज लॉजिक 0। तो यहाँ मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 0। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक ऑपरेशन। नाउ वी आर कनेक्टिंग NAND गेट में ऐसे हमारा कनेक्शन होगा, ओके, लाइक दिस विल बी, अगर मैं 2 इनपुट ले रही हूँ NAND गेट का, तो दिस इज हाउ। अगर यहाँ पे मुझे 3 इनपुट लेना है तो मैं एक और इनपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी। दीज आर द 2 ट्रांजिस्टर्स, इसके लिए बस 2 इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लेट मी एक्चुअली शो यू द सर्किट फॉर TTL NAND गेट। नाउ सी, जो TTL NAND गेट होता है ना, उसको वी आल्सो कॉल्ड एज, वी कॉल एज टोटेम पोल अरेंजमेंट। व्हाट वी कॉल इज टोटेम पोल। Now totem pole क्या होता है? इसमें there are 2 resistors. Let me show you the circuit first. See, yes, this circuit diagram is what I'm talking about. This is actually the circuit for TTL NAND gate, and it is called as totem pole output. Now see, यहाँ पे at this point we are connecting the output. Okay, at this point here it should be V0, V0 or V, anything you write V, मतलब this point पे we have the output. ठीक है? Now this is called as totem pole. क्यों? क्योंकि ना ये एक पर्टिकुलर ऐसा सिचुएशन है where Q3 and Q4 there are 2 transistors and they are operated together, जहाँ पे Q3 just Q4 के ऊपर बैठता है and there is a diode connection in between them and they both cannot operate simultaneously. एक साथ इनका ऑपरेशन नहीं होता. Okay, so this special connection where Q3 and Q4 are together but they don't operate at simultaneously, एक साथ नहीं ऑपरेट करते हैं, there is a diode in between them, is special situation connection for both the totem pole. Okay, these are some of the connections in electronics which you must have studied if you have. तो ये connections है कुछ, nothing much. अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, this is the emitter side of transistor, right? इतना तो we have studied, this is the emitter side, और यहाँ पर हम जितने emitter पे इनपुट लगाएंगे ना, that will be actually the input for NAND. जितने मुझे NAND गेट में इनपुट चाहिए उतने मैं यहाँ पे emitter लगा सकती हूँ. ये n इनपुट NAND गेट है, ओके, जितने हम लगाएंगे उतना मेरा इनपुट होगा for NAND गेट. Now see, अगर इस ट्रांजिस्टर में से एक ही जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एमिटर में से, अगर एक ही मेरा इनपुट 0 होता है ना, तो जो मतलब अगर एक भी 0 है तो ये जो कलेक्टर निकल रहा होता है, दिस कलेक्टर इज, सी दिस कलेक्टर जो है Q1 का कलेक्टर इज गोइंग टू मैच विद द बेस ऑफ Q2, है ना. ये मतलब बेसिकली Q2 को, ट्रांजिस्टर Q2 को ड्राइव करता है. अगर एक भी यहाँ पे एमिटर 0 होता है तो ये आउटपुट 0 देता है और इस बेस को ये ड्राइव ही, मतलब इस ट्रांजिस्टर के Q2 ट्रांजिस्टर के बेस को ड्राइव ही नहीं करता है. ड्राइव नहीं करता मतलब इसको ऑपरेट नहीं करने देता. ऑपरेट नहीं करने देगा तो दिस Q2 विल बी ऑफ. नाउ अगर देखो इस Q2 का जो कनेक्शन है इट इज कनेक्टेड टू Q4, हेंस मेकिंग द Q4 आल्सो ऑफ. अगर Q4 ऑफ होता है, Q2 भी ऑफ हो गया, Q4 भी ऑफ हो गया, तो मेरा आउटपुट है वो किससे कनेक्टेड है? दो ही रास्ता बचा, Q2 भी बंद हो चुका है. और ऑफ होने का क्या मतलब है कि इट विल नाउ द ट्रांजिस्टर विल बी अ ओपन सर्किट. अगर ये ओपन सर्किट हो जाता है तो क्या होगा, मतलब these are open circuit, मतलब नीचे का कनेक्शन ही नहीं है, तो ये दोनों ओपन हो चुके हैं. मतलब ये जो मेरा आउटपुट है, अब तो ये दोनों आउटपुट बस ओपन हो जाएंगे. मतलब ये जो ऊपर का सर्किट है इससे नीचे बिल्कुल ब्रोकन हो गया, कनेक्शन ही नहीं रहा, तो मेरा आउटपुट जो है वो हैंगिंग कंडीशन में से R2 R4 और यहाँ पे VCC पे रह जाएगा. ये जो VDD है, दैट मींस जो भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे VDD है, जो भी क्या कहाँ से कनेक्ट होगा, डायरेक्टली पावर सप्लाई. तो व्हाट विल बी माय आउटपुट? आउटपुट टू बी 1, है ना.
ये जो 1 है यहाँ पे 1 आ गया, एक भी अगर हम 0, एक भी मेरा अगर 0 होता है तो, बट इफ ऑल ऑफ देम, और ये एक ही केस होता है कि अगर तीनों अगर 1 हो जाते हैं तो माई ये क्या करेगा, Q2 को ड्राइव करेगा, Q2 विल बी नाउ शॉर्ट सर्किट, और अगर Q2 जैसे ही ऑन होगा तो ये Q4 को ऑन करेगा और Q4 विल बी शॉर्ट सर्किट, और जैसे ही दोनों शॉर्ट सर्किट होंगे तो क्या होगा, देखो हम आउटपुट ये रखते हैं, आउटपुट इज कनेक्टेड हियर, ओके राइट हियर, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ये स्ट्रेट पाथ आएगा, और ये जैसे ही स्ट्रेट पाथ आएगा किस पे जा रहा है, ये ग्राउंड पे, सी आई हैव माय आउटपुट एज 0 ईयर। अगर NAND गेट का ट्रुथ टेबल इफ यू रिमेंबर, तो NAND गेट के ट्रुथ टेबल में जैसे ही हमारा 1 होता था आई हैव माय आउटपुट एज 0, अगर एक ही इनपुट 0 होता था तो आउटपुट वाज 1, so that is what we are achieving from this totem pole output. Okay, so that is what is being, यहाँ पे तो बस इनपुट गेट का कनेक्शन था, so that was how the TTL NAND gate circuitry is operational.